Okay, now we are going to plot these points according to this schedule on this graph. Okay, so the first point was 0 and 100, it will be here 0 and 100. 0 means rice, x is wheat, so we are all producing wheat and no rice production is there. Okay, second case is of 10 and 90, so 10 is rice here, 90 will be here, so let us plot it over here like this, it will be plotted. Okay, then the 20 and 70, so 20 and 70 will be here somewhere, 20 and 70 it will be here, then it will be 30 and 40, 30 and 40 will be here somehow, 30 and 40, and the last one will be of 0 and 40 here. So if you will join it like this, okay, this points, so what will happen, a curve will be formed, this curve will be called as PPC curve. Now it shows this production capacity, whatever the point is inside, like a point is there inside, which is okay inside this PPC curve, this region here actually. So this is a point here, which means what? These are the points which show the maximum production capacity. Now if a point which is lying inside, okay, of this curve, means you are not producing 90 over here. Here we can say that we are producing like here, suppose this is a point, only 40 and 20 we are producing, here 40 and 20, this much we are producing, 40 and 20. So this point will be decided. So it lies under this production possibility. So of course this point is possible, this is attainable. You can easily attain it. इसको पाया जा सकता है, इसको achieve किया जा सकता है. But this is not our full production level. Like it cannot be like you can say that you are working on a efficient level. ये इनएफिशिएंसी को दिखा रहा है पॉइंट, क्योंकि आपके एक्चुअल आउटपुट से जो कि यहाँ होना चाहिए था, ये एक्चुअल आउटपुट लेवल से आपके ओके, यहाँ पे इस लाइन पे भी कहीं लाया करता है ये पॉइंट, इधर कहीं ए पॉइंट लाया करता है यहाँ पर ये, तो वी कुड हैव सेड दैट ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, और यहाँ पर ये जो चीज है बिल्कुल एक्चुअल आउटपुट पे है, आपका एक्चुअल आउटपुट लेवल पे है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल एफिशिएंटली वी आर डूइंग दिस प्रोडक्शन और बिल्कुल फुल्ली यूटिलाइजेशन हुआ है रिसोर्सेज का. अब यहाँ पर ये सिचुएशन है, थर्ड वाला अजम्पशन हमारा, या तो वो फुल्ली यूज नहीं हुआ या फिर इनएफिशिएंटली आपके रिसोर्सेज यूज हुए, इसलिए वो ए पॉइंट यहाँ पर है, कम है. अगर एक और पॉइंट में लिख दूं यहाँ पर बी पॉइंट, और उसकी जो कॉम्बिनेशन वो ले लेते हैं 40 and this point, this is 40, the last one, 40 and we can say 50, so 40 and 50. So is it possible to achieve this point over here? This is a B point here. Can you achieve this point? Can you achieve? No, because the resources are not that much. इतना सारे resources नहीं है कि आप पे दोनों चीजें बढ़ा दो, ये 40 भी ले लो और यहाँ पर ये 50 wheat भी उगा लो, तो that is not possible. That's why it's a combination. Every time when you want something जो चाहिए आपको, तो आपको कुछ ना कुछ लॉस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. यहाँ पर हमने सेक्रीफाइस किया, गेन कितने का किया था 10 का, यहाँ पे हमने बिल्कुल लॉस भी किया 10 का. तो ये जो प्रोडक्शन हुआ है एडिशनल प्रोडक्शन, इसको इसने ऑफसेट कर दिया एक तरह से, गेन मिला ओके पर लॉस भी हुआ है, सो इट इज ऑफसेटिंग, ये मान के चल रहा है. यू कैन से सर कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है ओके, बट यहाँ पर 10 मिला पर यहाँ पर तो कम मिला ओके. तो ऐसा हो सकता है व्हेन यू डिस्टर्बिंग एंड स्पेशलाइज्ड यूज, आप एक स्पेशलाइजेशन ले चुके थे, वीट बहुत अच्छे से उगा रहे थे, नाउ यू आर जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम दैट टू अनदर यूज. तो जब आप शिफ्ट करते हो, आप एक अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज, जहाँ पर सब कोई एक्सपर्ट हो चुका है किसी चीज को, किसी काम को करने में, तो आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, एक स्पेशलाइज यूज को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, उसकी वजह से हर बार आपका जो कॉस्ट है, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो बढ़ती रहेगी. इट विल बी 1 2 3 4 okay, and as I said earlier, marginal rate of transformation is nothing but your MOC, marginal opportunity cost only, MOC. It is also change in Y to change in X. So same thing, you are calculating this MRT, it is nothing but your marginal opportunity cost. Okay, attainable point, अनअटेनेबल पॉइंट, जो बाहर है कर्व के वो अनअटेनेबल रहेगा, जो अंदर है इस कर्व के वो अटेनेबल रहेगा. Another thing, when we say that if there is some change in the resources, suppose this is your x-axis, this is your y-axis, now this is your curve,
PPC curve here. Okay, now we are producing X good and Y good over here. So if there is this change in the technology, suppose there is a change in technology of Y good, and second point again change in technology of X good. तो एक बार Y गुड की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, एक बार X गुड की टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ. तो पहले देखते हैं कि X गुड की टेक्नोलॉजी में अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो कर्व कैसे बिहेव करेगा. सो इफ दिस X गुड इज देयर एंड सम टेक्नोलॉजी इज बीन इम्प्रूव्ड हियर, सो दिस PPC will move forward. Okay, so from this OM level we can say that this point we can give it a name M. It will shift to M1 and this curve will be like this. Okay, so it will rotate. Whenever just one point is shifting, it is called as rotate of curve, rotation of the curve. Okay, so here it is rotating. Okay, now in case of, say for example, technology of X is same but the technology of Y good is improved, Y की टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ये Y से ये जो पॉइंट है इसको OT ले लेते हैं एंड OT1 ये किधर मूव कर देगा, आगे की तरफ. बट दिस पॉइंट ऑफ योर X गुड विल रिमेन द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो इसको भी बोलेंगे रोटेट, एक ही जगह से शिफ्ट हुआ है. नाउ एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, द रिसोर्सेज. अगर कुछ नए रिसोर्सेज मिल जाए, सपोज सम न्यू रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड, कुछ नए रिसोर्सेज आपको डिस्कवर हो गए, मतलब कुछ कोल पेट्रोल जैसा कुछ आपको और एडिशनल मिल गया, तो हमारे जो कर्व है कैसा बिहेव करेगा. सी इन दिस केस सपोज दिस वाज आवर कर्व अर्लियर वन. ओके, तो अब ये कैसा बिहेव करेगा, जब रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो ओके, तो यहाँ पर रोटेट नहीं होगा कर्व, यहाँ पर शिफ्ट होगा कर्व. इट विल शिफ्ट टू राइट. अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो राइट साइड पे आपका कर्व शिफ्ट हो जाएगा. ओके, इसको कब होगा, ये कब होगा, जब आपके कुछ नए रिसोर्सेज डिस्कवर हो जाए, तो आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. अब यहाँ पर ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या है, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो इसलिए हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी क्या दिखा रहा है कि आप ज्यादा बना पाओगे. ठीक है, नाउ दिस थिंग, अगर रिसोर्सेज कम हो जाए, जैसे कि कोरोना वायरस इन कोविड-19 बहुत सारी डेथ हो गई मान लेते हैं, सपोज बहुत आधी आबादी खत्म हो गई है, नाउ बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रक्शन अगर ऐसा कुछ आता है जहाँ पे आपके रिसोर्सेज ही कम हो जाए, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो आपने ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था, तो वो उस केस में कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर आप कुछ चाहो तो नाम दे सकते हो, T1 इधर दे दो, इसको M है तो इसको M1 इधर दे दो. इन दैट केस इट विल शिफ्ट बैकवर्ड. फॉरवर्ड कब जाएगा, जब नए रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं. स्किल इंडिया प्रोग्राम, ओके, क्लीन इंडिया मिशन, इससे भी रिसोर्सेज पे इंप्रूवमेंट होगा, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. देखो ये जो स्किल इंडिया मिशन है, इसमें क्या होगा, बेसिकली आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप और एफिशिएंसी से काम कर पाओगे, और जब आप और एफिशिएंसी से काम कर पाओगे तो बेसिकली आपका ये जो कर्व है किधर शिफ्ट होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा. ठीक है, इट विल मूव फॉरवर्ड. स्किल इंडिया मिशन में भी यही है. स्किल इंडिया मिशन जो भी गवर्नमेंट का है, उसके अंदर आप अगर स्किल करते हो किसी रिसोर्सेज को, कुछ रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन रिसोर्स, हम भी एक रिसोर्स है कंट्री के लिए, और अगर हमको अगर कुछ सिखाया जाए, स्किल बना दिया जाए, suppose we are trained somehow some kind of particular technique or skills, so what will happen, our productivity will rise. okay, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हम देश के कुछ काम आ पाएंगे. उस केस में भी हमारा कर्व किधर मूव करेगा, राइट हैंड साइड पे करेगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा. रोटेट कब होता है, जब एक ही चीज में चेंज आ रहा होता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड डोंट कंफ्यूज इट दिस थिंग विथ एमओसी एंड एमआरटी एक ही चीज होती है. आप उसका देखेंगे शेड्यूल, आपकी बुक में भी होगा, तो इसी तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया. ओके, थैंक यू.